की जो कमी होती है उनको किलेबंदी करके उनको पूरा किया जाता है। जैसे फूड फोर्टिफिकेशन में आपके फोर्टिफिकेशन के जो बेनिफिट्स हैं उन पर बोलना चाहूँगा। माय नेम इज शशांक गुप्ता और मैं फूड फोर्टिफिकेट्स का जो एडवांटेज है उस पर बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली सर जो इतनी देर से सारे सीनियर्स बता रहे थे कि सोसाइटी के जो मान न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है उसको हम इसके थ्रू बहुत इजीली कम कर सकते हैं। दिगेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार मिश्रा, जितेश सिंह, अविनाश, मदीशा आसिफ, जितेंद्र कुमार चौहान, मोहम्मद दानिश। Good afternoon to one and all present over here. Good afternoon to all the jury members. I am Kriti Sharma. I am here to express my views on the motion that fortification of food is either advantageous or disadvantageous. So I will speak against the motion that is food fortification is disadvantageous. I will tell the disadvantages of food fortification. So many of my friends have already told the advantages of food fortification, that it involves the addition of micronutrients to the small amount of micronutrients to the food, which is of course beneficial to the society. But all those food which have been fortified are not available to the poorest population of the country. Poor people cannot afford the fortified food. They cannot afford the fortified flour. They cannot afford the fortified rice. Only the rich people can afford the fortified food. Food fortification in itself was for the upgradation of the food for the malnourished children, for the malnourished kids, which come from the poorer society. But only those people cannot afford it. So this is, I think that this is one of the disadvantages, or I think this is one of the drawbacks of food fortification. Next thing is we are losing the indigenous crops, indigenous varieties of our country, or indigenous many crops and indigenous varieties which were earlier found in our country, but now they are totally extinct. So now the farmers are using genetically modified crops. They are so that they can get good yield, but they are not growing the indigenous varieties, and we are not getting the indigenous varieties. They have been totally extinct from the country, from the environment. So we should work on it. We should also try to grow the indigenous crops. We should not always go for the genetically modified crops. So in this aspect, I think food fortification is having a drawback. And other thing is that food fortification is good, but sometimes food fortification leads to the adulteration, or the sometimes food fortification when not done in a proper way, then it leads to the adulteration. It leads to the damage of the food. So only trained people and educated people are required. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ सबीला अली, इंडिया नाउ 24 से, और आज हमारे साथ हैं रविंद्र कुमार तोमर जी, जो इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। तो चलिए आइए उनसे कुछ बातें पूछते हैं स्वास्थ्य के बारे में। और पहले तो मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने इस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। और अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कुछ स्वास्थ्य के बारे में बताएं कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखा जा सकता है। देखिए, अभी इससे पूर्व कोरोना काल गया है और सभी ने सुना होगा कोरोना काल में इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारा विभाग सबसे अग्रणी है, क्योंकि विभाग का नाम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण है और इस विभाग के अंतर्गत आता है फल और सब्जियां।
जो विटामिन और मिनरल से भरपूर रहती हैं और इसमें किसी तरह की मिलावट भी नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जो भरण पोषण के लिए जो आवश्यक है, जो प्रोटीन है चाहे फैट है, इसके साथ साथ विटामिन और मिनरल की आवश्यकता होती है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल आप जानते हैं बच्चे वगैरह फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बाहर का खाना हमारे लिए सही है या नहीं है? देखिए, आजकल जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, विशेष तौर से जितने दूध के, मिल्क के प्रोडक्ट आ रहे हैं, और ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत हाइजीन मानते हैं। उन प्रोडक्ट में एक तो थोड़ा सा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी अच्छी रहनी चाहिए, अच्छे जगह पर उसको रखने की आवश्यकता है, और जितने माइक्रोब्स उसमें डेवलप होते हैं इतने दूसरे अन्य में नहीं होते हैं, तो उससे बच्चे बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए, और दूसरा देखने में आता है कि जैसे मिठाइयाँ हैं तरह तरह की, उसमें काफ़ी मिलावट भी होती है, या दूसरे ऐसे स्टैंडर्ड रहते हैं कि जितना प्रतिशत उसमें मिलाया जाता है उससे ज़्यादा उसमें मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसमें एक इस तरह के आदमी के अंतर्गत जो है विकार आने लगते हैं, बच्चों के पेट खराब होने लगते हैं, दूसरी डिजीज होने लगती है, और यहाँ तक भी देखा गया है कि फास्ट फूड और दूसरे के कारण आपकी जो पाचन शक्ति है वो गड़बड़ होती है, और पाचन शक्ति आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। सर आप इस डिपार्टमेंट को कब से सहयोग दे रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? मैं तो इस विभाग में 1993 से हूँ, और यहीं से मेरी सर्विस प्रारंभ हुई थी 1993 से, और बस 1 वर्ष और है। जी ओके। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।